Okay, so we are learning law of conservation of energy. What does law of conservation of energy state? Law of conservation of energy states that energy neither can be created nor can be destroyed, but can be converted from one form to another form. Means if you generate energy by doing work, you generate energy by doing what? You generate energy by doing work. We have already learned in our previous sections that we generate energy by doing work, and that work is stored as energy. The work that we do is stored as energy. Suppose if I am doing the work of lifting this, suppose this is the ground. If I am doing the work of lifting this pane above the ground, I am doing a work against the force of the gravity by applying force and making it to cover a displacement, and hence the angle between the force vector and displacement vector both upwards becomes 0 degree. So cos 0 degree is 1. So W becomes equals to F into S, and cos theta becomes 1. So now F is M into G because I am trying to lift up something. F is what? M into G. And how much distant displacement have I covered up to this much? H amount, suppose. So it will be mgh. And what is mgh? Mgh is the formula of potential energy. So I have done a work and stored some energy. Yes or no? I have done a work and stored some energy. I'll tell this in details. Now, you see, we do work to store some energy. That energy you have not created actually. You have done work and stored it. You cannot say that I have created it. Because here only, suppose you are pulling it, you wouldn't be able to pull it up if your muscles didn't have the energy to do so. Your muscles got energy from food, and food is a chemical energy that converted into mechanical energy. Mechanical energy means energy of the, or you can say muscular energy. Right or wrong? And we are pulling it up. When we are pulling it up, that energy is getting converted into work, and work is getting again converted into energy. So actually, work only doesn't store as energy. Energy is also gets converted into work. And this thing I have discussed in the previous classes. Already in details. Today we understand this concept that we generate energy by doing work. We generate energy by doing work. Or the energy that is already stored can be spent by doing work. This concept we have learned. Conversion of one form of energy into another form of energy, like electrical energy into mechanical energy, chemical energy into electrical energy, nuclear energy into electrical energy. All types of conversions has been done in the last part of the energy that is in my YouTube. Okay, energy class 9. Now the fact is this, that today we will understand this concept. We know about the conversion of energy from one form to another. We know. But we also have to prove that, okay, we understand that law of conservation of energy states this. We understand this now. Don't we? Yes or no? We understand that, okay, fine. Energy is not created. It is done by work. It is stored by work. And energy cannot be destroyed. It can be converted from one form to another form. Now the fact is this. We need to also prove it. Now to prove it, we need to understand that mechanical energy is equal to kinetic energy into potential energy. Plus potential energy, the total kinetic and potential energy stored in a body due to its state of, point of location according to the gravity, according to the ground, okay, where it is, 3-tala building er upore, 4-tala building er upore, 5-tala building er upore, where it is, how much mass it has, because potential energy is equals to mgh. And this formula came how? This formula came because, you see, you have picked up one ball at height h, you have done a work, and that work is equals to mgh. Why? Because work is equals to F into S. Here force is
You are applying the force against the force of weight, and weight is W is equals to mg. Right or no? Weight is W equals to mg, and so force के जगह में we can put mg, and s h distance उठाए तो f into s mgh. सर cos थीटा यहाँ पे 0 होगा, cos 0 डिग्री इक्वल्स टू 1 होगा एक्चुअली. ठीक है, यहाँ पे cos थीटा बैठता है, fs cos थीटा, तो cos 0 1 होगा क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है. यही चीज तब बता रहा था मैं ऐसे हाथ में. एनीवे, अब बात ये है कि ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इज mgh, ये एक फॉर्मूला है जो इसका आया है और कुछ बात नहीं है इसमें. ठीक है, एक फॉर्मूला है जो आया है, पोटेंशियल एनर्जी इज mgh. मतलब एक बॉडी अगर है ग्राउंड से h हाइट के ऊपर, h हाइट के ऊपर एक बॉडी है, तो उस बॉडी का मास अगर m है तो उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है दैट इज इक्वल्स टू mgh. अब इसी बॉडी में द अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी मैं 0 लूंगा. क्यों सर? क्योंकि ये बॉडी अभी रेस्ट में है और हमको पता है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv². ये भी प्रूफ करके प्रीवियस वीडियो में ला दिया है मैंने, और ये भी वर्क करते हुए ही मिला है ये एनर्जी. एनीवे, तो हाफ mv². लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी 0 पकड़ सकता हूं मैं, u इज इक्वल्स टू 0, और इनिशियल वेलोसिटी 0 क्योंकि ये रेस्ट में है अभी कुछ वक्त के लिए. तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी विल बिकम इक्वल्स टू, total mechanical energy will become equals to, in case number 1, total mechanical energy will become equals to mgh plus 0 equals to mgh. So the total mechanical energy's value is mgh at point 1. Let it fall and come at point 2. Now when it comes at point 2, suppose the mass is m. Okay, suppose the mass is m, and when it comes at point 2, suppose let us understand that it has traveled x distance or x displacement. Now at this point the height of it from the ground must be h minus x. Now why it must be h minus x? Because total is h, so x distance is it has traveled. So it must be h minus x from the ground. Is this clear to you? Yes. अच्छा, यहाँ पे लाइट आ रहा है, फिर भी मैं यहाँ पे लिखा हूं तो क्या हो रहा है कि मेरे को नहीं दिख रहा है, यहाँ पे लाइट है तो दिख नहीं रहा है. दिस इज, वहां पे कुछ खास लिखा भी नहीं था, वहां पे लिखा था कि क्या लिखा था, ऑफ एन ऑब्जेक्ट, टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऐसा कुछ लिखा था, ऑफ एन ऑब्जेक्ट और ऐसे पार्टिकल. वो इंपॉर्टेंट नहीं है. एनीवे, यहाँ पे देखो जहां पे थे हम लोग, तो x ये हो गया तुम्हारा h माइनस x. अब तो इसमें कितना पोटेंशियल एनर्जी है, कितना काइनेटिक एनर्जी है, दोनों को निकाल के प्लस कर देंगे तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी आ जाएगा. इस पॉइंट में अब यहां पे इस टाइम पे इस पॉइंट पे टोटल कितना मैकेनिकल एनर्जी है वो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पे कितना पोटेंशियल एनर्जी है और कितना काइनेटिक एनर्जी है, दोनों को निकाल के प्लस करना पड़ेगा तो आएगा. लेकिन तुम अगर बोलोगे कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी था, काइनेटिक एनर्जी 0 था, क्या यहाँ पे वैसा सिचुएशन है? क्यों? क्योंकि ये अभी मोशन में है ना, ये मोशन में है, इसका मतलब इसके पास वेलोसिटी है, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी है. तो अगर इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, क्या इसका पूरा पोटेंशियल एनर्जी गायब हो गया है? नहीं, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी भी है क्योंकि ये ऑलरेडी h माइनस एक्स हाइट के ऊपर है. मूव करे चाहे रेस्ट में रहे, हाइट के ऊपर रहने से उसके पास पोटेंशियल एनर्जी रहेगा. ये सब नो. तो पॉइंट 2 में मैं अगर निकालू, ये पॉइंट 1 का है, अब पॉइंट 2 का निकाल रहा हूं. ठीक है, पॉइंट 2 में मैं अगर निकालूं तो सबसे पहले तो मेरे को पोटेंशियल एनर्जी अगर कोई पूछेगा तो मैं बोलूंगा mgh माइनस एक्स, मास इंटू g इंटू हाइट. हाइट कितना है? h माइनस एक्स. तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं, mgh माइनस mgx. ठीक है, इसको खोल के रख दिया. अब काइनेटिक एनर्जी कितना है वो निकालने के लिए थोड़ा लोचा हो सकता है. क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का है हाफ mv². ठीक है, तो हाफ mv² है, तो v कितना है यहां पे सर?
v कैसे निकालें, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, डिस्टेंस x दिया है आपने, डिस्टेंस बताया नहीं है आपने, टाइम बताया नहीं है कितने टाइम में ये ट्रेवल किया है, तो मैं कैसे निकाल लूं कि यहां पे वेलोसिटी कितना है? मैं नहीं निकाल सकता, कोई भी इक्वेशन ऑफ मोशन मेरे को परमिट नहीं करता है। तीनों जो सीखे हैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, a इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर एंड v इज इक्वल्स टू u प्लस at। कुछ ना कुछ एक ना एक तो ये होगा, यहाँ पे ऐसा इक्वेशन नहीं है कि यहाँ पे मेरे को निकालने के लिए मदद करे, ठीक है, लेकिन चाहे ना करे, देखते हैं फिर भी क्या आ रहा है। सर ऐसे क्यों कर रहे हो? आएगा तो नहीं, वैल्यू तो दिया हुआ नहीं है, तो क्यों इक्वेशन अप्लाई कर रहे हो? क्योंकि मैं मैकेनिकल एनर्जी का जो आंसर आएगा ना, उसको सिंपल फॉर्म में लिखना चाहता हूं, इसलिए मैं करूंगा, इसलिए मैं v निकालने का कोशिश करूंगा। सर क्यों इसको सिंपल फॉर्म में? क्योंकि देखो, अगर मैं अभी ऐड करके लिख दूं ना, मैकेनिकल एनर्जी इन केस 2 इज इक्वल्स टू, देखो अभी ऐड करके लिख देता हूं, कोई मतलब मजा नहीं आएगा उसमें। क्या लिखोगे? mgh माइनस mgx प्लस हाफ mv स्क्वायर। क्या इससे ये प्रूफ होता है कि इन दोनों पॉइंट में एनर्जी सेम है? मेरा एजेंडा क्या है? एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, मतलब यहां पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी और यहां पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी सेम रहना चाहिए। हाँ, मान सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में बदल सकता है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल सकता है, वो तो होगा ही, और हो भी रहा है। काइनेटिक एनर्जी 0 है, अभी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं है, मतलब काइनेटिक एनर्जी बड़ा है। और देखो ना, पोटेंशियल एनर्जी mgh है और पोटेंशियल एनर्जी mgh माइनस mgx है, मतलब सम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हैज बीन टेकन आउट, दैट मींस पोटेंशियल एनर्जी हैज डिक्रीज्ड एज इट हैज गॉन डाउन एंड हाइट हैज डिक्रीज्ड, पोटेंशियल एनर्जी हैज डिक्रीज्ड। यस और नो? तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। अच्छा, क्या बोल रहा था मैं भूल गया, यहाँ पे ट्रेन जा रहा था, मेरे को पॉज करना पड़ा। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी mgh माइनस mgx, माइनस mgx हुआ है ना बेटा, राइट और रॉन्ग? mgx माइनस हो गया है, मतलब टोटल जितना था, जितना ज्यादा था वहां से घट रहा है, और ये प्रूफ भी हो रहा है क्योंकि देख के भी लग रहा है, क्योंकि नीचे जितना जा रहा है उतना हाइट इसका घट रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, ये प्रोसेस हो रहा है नीचे वाला रेड एरो। ये सुनो, काइनेटिक एनर्जी 0 था, कुछ का आया है। लेकिन अगर मैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी ये लिख दूं, क्या इससे ये सिद्ध होता है कि दोनों को ऐड करने से सेम ही आना चाहिए? सेम आना चाहिए मतलब mgh आना चाहिए, सबसे पहली बात, राइट और रॉन्ग? यहां पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी अगर mgh था 0 ऐड होके, तो यहां पे भी होना मांगता है भाई, क्योंकि आप ही ने पढ़ा है कि चाहे काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाए, फिर भी आप क्या करोगे? आप बोलोगे कि नहीं, टोटल एनर्जी शुड बी कंजर्व्ड, राइट और रॉन्ग? तो इस वजह से यहां पे v को सिंप्लीफाई करना चाहता हूं, देखता हूं कोई उपाय बनता है कि नहीं। बन जाएगा, चलो यूज करते हैं v स्क्वायर, अभी लिखते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अच्छा, सबसे पहली बात, अगर मैं v स्क्वायर लिख रहा हूं माइनस v स्क्वायर, मतलब ये यहां पे v कितना है ना, v, उसी v को तो यहां पे मल्टीप्लाई किया है, हाफ mv स्क्वायर, यहाँ पे v कितना है, यहाँ पे वही तो निकालना है, तो v स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 था, इज इक्वल्स टू 2as, नीचे की तरफ आ रहा है तो इसलिए 2g हो जाएगा, क्योंकि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, और s हो जाएगा तुम्हारा, s है x, है ना, इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है ना, तो s है x, तो तुम्हारा v स्क्वायर कितना आ रहा है? 2gx, राइट और रॉन्ग? चाहे तो v निकाल सकता हूं रूट ओवर मार के, जरूरत नहीं है, यहां पे v स्क्वायर को बदल देंगे, सब v स्क्वायर को बदल दो, हाँ बदल देंगे, mgh माइनस mgx प्लस हाफ m, v स्क्वायर की जगह क्या लिखना है? 2gx लिखना है, 2gx लिखना है। अब हो रहा है क्या, ये 2 और 2 कैंसिल हो जा रहा है, यानी mgh माइनस mgx प्लस mgx। अरे देवा, मतलब यहां पे जितना पोटेंशियल एनर्जी था वो नीचे की तरफ गया, तो इतना पोटेंशियल एनर्जी निकल गया, और ये प्रूव हो गया कि जितना पोटेंशियल एनर्जी निकल गया सारा काइनेटिक में कन्वर्ट हुआ है, क्योंकि देखो सर, काइनेटिक एनर्जी का जो हाफ mv स्क्वायर का जो पार्ट था, ये काइनेटिक एनर्जी था,
ये कितना आया, mgx आया, यानी जो पोटेंशियल एनर्जी जो था वो काइनेटिक एनर्जी में बदल चुका है। ये नो। अच्छा, एक मैथमेटिकल इक्वेशन के हिसाब से तो काट सकते हैं, और मेरा आंसर क्या आ रहा है, mgh। अरे मजा आ गया। तो मैथमेटिकली भी प्रूव हो गया, मैकेनिकल एनर्जी इज mgh, मैकेनिकल एनर्जी इज mgh at point 2, दैट मींस एनर्जी इज कंजर्व्ड ओनली, पोटेंशियल एनर्जी गॉट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। मजा आया। फिर लास्ट पोजीशन, अगर यहां प्रूव हो गया तो लास्ट पोजीशन में भैया जी प्रूव ही हो जाएगा, है कि नहीं। जब वो बिल्कुल दिस पोजीशन इज जस्ट 0.01 मिलीसेकेंड्स अवे फ्रॉम हिटिंग द ग्राउंड, तो इस पोजीशन में आप हाइट इज इक्वल्स टू 0 ले सकते हैं, क्योंकि एकदम ग्राउंड को टच करने ही वाला है, उतना छोटा हाइट लेके क्या करेगा, हाइट को क्या लग सकता है, 0 लग सकता है। तो पोटेंशियल एनर्जी तेरा कितना आया बेटा, 0.3 पे, ये 0.3 है, सोच पोटेंशियल एनर्जी तेरा आ गया 0, क्यों, m इंटू जी इंटू एच, एच 0 तो 0 करने से 0, और तेरा काइनेटिक एनर्जी बेटा आ गया, अब थोड़ा सा और चैलेंज है, मतलब हाफ एम वी स्क्वायर, फिर से एम वी स्क्वायर है, तो अगर टोटल मैकेनिकल एनर्जी में जाएंगे तो मेरा हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन वी स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे। सर रिप्लेस किया हुआ तो है, बैठा देते हैं। अबे गधे, रिप्लेस किया हुआ है बैठा नहीं दे सकता, क्योंकि ये इस पॉइंट के लिए तूने वी स्क्वायर निकाला था। क्या ये वी और ये वी सेम चीज है? यहां पे जितना वेलोसिटी होगा नीचे आने से वेलोसिटी थोड़ा बढ़ेगा ना, एक्सीलरेशन की वजह से, राइट और रॉन्ग। तो इसको वी डैश पकड़ लेते हैं, है ना, क्या पकड़ लेते हैं, वी डैश। इस पोजीशन में हम लोग वेलोसिटी को वी डैश पकड़ रहे हैं, तो हम लोग एक्चुअली वी डैश निकालना चाहते हैं। तो वी डैश अगर निकालना चाहते हैं, मैं इस चीज को मिटा रहा हूं, यहां निकालते हैं। वी डैश को अगर निकालना चाह रहे हैं तो वी डैश स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as लिखेंगे, मतलब एकदम इनिशियल पॉइंट से एकदम फाइनल पॉइंट में लेंगे। तो v डैश स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, इनिशियल में 0 था, इज इक्वल टू 2g होगा, g s होगा टोटल हाइट ट्रेवल्ड, h, क्योंकि इस पॉइंट से इस पॉइंट में ले रहा हूं। सो v डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। अब 2gh आया इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ इंटू m इंटू 2gh, 2 कैंसिल, क्या आया, mgh आया कि नहीं। यानी थर्ड पॉइंट में भी mgh, मतलब टोटल मैकेनिकल एनर्जी तीनों सिचुएशन में सेम है। यहां पे क्या हो रहा है, ये भी दिख रहा है कि इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी mgh था, अब फाइनली काइनेटिक एनर्जी mgh बन चुका है, मतलब पूरा पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड में जस्ट हिट करने से पहले काइनेटिक एनर्जी में बदल गया है, पूरा पोटेंशियल एनर्जी। मजा आया सुन के। तो ये हुआ आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रूफ। अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग है, ये प्रूफ कर पाओगे, टाप दो इसको, बोर्ड देख के आराम से एकदम अच्छे फिगर बना के, राइट और रॉन्ग, फिर उसके बारे में थोड़ा और बात करेंगे, ठीक है ना।